Chapter number 6 Introduction to Organic Chemistry. Topic is sources of organic compounds. Organic compounds के दो sources हैं, natural sources and synthetic sources. Synthetic sources वो जो हम लेबॉरेटरी में compounds बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक के, रबड़ है, ये synthetic sources हैं. और वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड द मिनरल्स, ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम मिनरल्स और एनिमल्स से डायरेक्टली हासिल करते हैं, उसका अब बहुत बड़ा तादाद है. जैसे कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज, स्टार्च, शुगर ETC आ जाते हैं. प्रोटीन से ये डायरेक्ट हम प्लांट से हासिल करते हैं, जैसे सिल्क है, वूल है, केसिन है या फूड है. कुछ वेजिटेबल ऑयल से, फैट्स है, विटामिन से, ड्रग्स ETC, ड्रग्स डाइज ETC, ये प्लांट्स में से हम मुख्तलिफ मेथड से आइसोलेट करके हासिल करते हैं. Similarly, many organic compounds like milk, fat, protein, urea, uric acid, ETC are obtained from the animals. The next source is the mineral sources. The minerals are natural sources. Minerals are formed over a long period of time from the decay of plants and animals. These are coal, natural gas, petroleum. These are called fossil fuels. तो मतलब ये हुआ कि ये जो मिनरल्स जिनको हम कहते हैं, ये एक नेचुरल सोर्सेज है, क्योंकि ये मिनरल्स जैसे कोल गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये किससे बनते हैं? ये भी एनिमल्स और प्लांट्स से ही बने हैं. जिसके लिए कह रहा है कि many years ago plants and animals decayed and converted into minerals. तो इनमें जो अहम जो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है मिनरल में, वो कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है. अब हम उनको स्टडी करेंगे एक एक करके. फर्स्ट इज द कोल. कोल इज अ ब्लैक सॉल्ट फ्यूल. इट इज बिलीव्ड दैट कोल इन नेचर वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज buried inside the earth crust some 500 million years ago. Due to the bacterial and chemical reactions on wood, it got converted into peat. Then as a result of high temperature and high pressure inside the earth crust, peat got transformed into coal. Coal, that is a lignite, hard coal, and a bituminous coal, that is the soft coal. So you see here that this wood which is formed from the dead plants and the trees was converted due to chemical reactions into peat. Then with high temperature, high pressure, peat was converted into lignite, and lignite was converted into bituminous coal. So coal is obtained from the dead plants, from the wood, by the chemical reaction, high temperature and high pressure. Now in the coal, the peat contains 60% carbon, lignite contains 67% carbon, and bituminous coal contain about 80% of carbon. And as we already said that bituminous coal is very important source of organic compounds. How we will obtain organic compounds? From the bituminous coal. So products obtained from coal by destructive distillation are coal gas, coal tar, coke, and ammoniacal liquids. When bituminous coal is subjected to carbonization or destructive distillation, four principal fractions are obtained, or products are obtained. That is the gaseous product, coal gas, ammoniacal liquids, viscous product, coal tar, and solid product, coke. What is the destructive distillation? ये destructive distillation हम किस तरीके से करते हैं? Destructive distillation is the chemical process involving the decomposition of coal
by heating to a high temperature at about 500 to 1000 degrees centigrade in the absence of air. It is also called dry distillation and it is also called pyrolysis. How destructive distillation is performed? Here is a sample in the here is a sample of destructive distillation performed in the laboratory. Finally, powdered coal is taken in a test tube. This is the horizontal test tube. इसमें हम कोल जो फाइनली पाउडर फॉर्म में लेकर उसमें रखते हैं, फिर हम इसको इस बंसन बर्नर की मदद से स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो कोल है ये हीट करने से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कोल ब्रेक डाउन हो जाता है और उसमें से 4 मेजर फ्रैक्शंस बनते हैं, जैसे कोल गैस, कोल टार एंड कोक। ये कैसे? तो कोल गैस और कोल टार वेपर की सूरत में इस पाइप के रास्ते इस सेकंड ट्यूब में जिसमें वाटर मौजूद है तो उसमें अंदर ये गैसेस जाती हैं। तो कोल गैस गैस फॉर्म में है, वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये बाहर इस टेस्ट ट्यूब से निकलना शुरू करेगी। और जो कोल टार है वो इधर से तो हीट की वजह से वेपर की फॉर्म में आता है, लेकिन वाटर में जाने के बाद वो कूल होकर वो एक विस्कस लिक्विड कोल टार बनाता है जो इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाकर कलेक्ट होता है। आप देख सकते हैं कि दिस इज द कोल टार। एंड अमोनिया के जो कंपाउंड आते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होकर और वो एमोनिकल लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। और कोल में जो सब्सटेंस वेपोराइज नहीं हुआ उसको हम बोल सकते हैं ये रेजिड्यू है, और जिसे हम कहते हैं कि ये कोक है और ये सॉल्ट फॉर्म में मौजूद होता है। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसी तरीके से फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर की जाती है। ये एक नमूना है जो हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इस लेबॉरेटरी में शो करके दिखाया है। तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस है जो आप देख रहे। पाउडर को किस में डाला हुआ है, ये एक ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, कंबस्शन ट्यूब कह सकते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टली इस आयरन स्टैंड में जो है वो बंद करके रखा गया हुआ है। ये कार्क है, इस कार्क में ये डिलीवरी ग्लास ट्यूब होते हैं जो फिर ये कार्क है दूसरे टेस्ट ट्यूब में, ये पूरा ट्यूब ग्लास ट्यूब है जिसे हम डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। और ये दूसरा ट्यूब है जो इधर बाहर निकलता है और इसमें डिस्टिल्ड वाटर मौजूद होता है। ये बंसन बर्नर है जो एक स्टैंड पर रखा हुआ है। तो आप जैसे इसको स्ट्रांगली जैसे हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, दिस कोल विल ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस दीज वेपर्स, कोल गैस, कोल टार एंड अमोनिया। अमोनिया वाटर में डिजॉल्व होकर अमोनिकल लिक्विड बनाती है जिसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। और कोल गैस वाटर इनसॉल्युबल है, गैसियस फॉर्म में है, ये इसकी डेंसिटी कम होती है, हल्की गैस है, तो जाहिर है ये इधर बाहर निकलना शुरू करेगी। और ये जो बाकी कोल टार है वो इधर इस टेस्ट ट्यूब में जो सेटल हो जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में कह सकते हैं कह ले, तो ये कोल टार कहलाता है। और वो जो रेजिड्यू जिसे हम कोक कहते हैं। तो ये 4 मेजर प्रोडक्ट हैं जिसमें से कोल टार जो है ये मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हर एक को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे।